I am very happy to welcome the present intern batch from the ESIC Dental College. All these guys are interns and they have been associated with the ACE Achievers Dental Academy, and all of them have got a fantastic result in the current exam. In just 1 year of preparation, they have cracked the exam. The highest rank being Dr. Maheshwar Singh, he is ranked 6 overall in the NEET exam. Dr. Madhu Sharma, she is ranked 259 in the exam, and Dr. Chanpreet Singh, he is overall ranked 300 in the exam. So great going, guys, congratulations. In the first year of preparation, you have managed this. We'll start with the journey of Dr. Chanpreet Singh, how he's gone about the preparation. Let's listen from him directly. Hello, myself Dr. Chanpreet Singh. I've completed my BDS from ESIC Dental College and I completed my internship in September 2020. I joined ACE Achievers for the revision course in June 2020. फिर जब मेरा एम्स का एग्ज़ाम आया, I got 68 रैंक, तब मेरे को एक बिलीव आ गया था कि मैं ये पेपर क्रैक कर सकता हूँ, कि एवरेज बच्चे भी इसमें आगे एक्सेल कर सकते हैं. उसके बाद I got 304 रैंक इन NEET 2021 and I think it was a great decision to join ACE Achievers because the right path, रास्ता होता है, वो मेरे को अक्षिका मैम और नीरज सर ने दिखाया कि ये सही तरीका है, इस तरीके से ही तुम एक टारगेट को अचीव कर सकते हो. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू both the teachers. Thank you. Hello, I'm Madhur Sharma and I did my BDS from ESIC Dental College Rohini. I completed my internship in September 2020 and I became associated with ACE Achievers Academy during the beginning of my internship, that was in October 2019, and I continued with the full course batch. And now this year when I appeared for AIMS, this was my very first attempt, and so I got a little nervous, so couldn't score a good mark in AIMS, but then I couldn't lose hope. Akshika ma'am motivated me that no, you can do better, and then when I appeared for NEET, I got a 259 rank and I'm quite satisfied. It is a decent rank for a first time intern, so I'm satisfied with my rank, but will continue to thrive for better ranks. Hello, myself Maheshwar from ESIC Dental College. मैंने अभी इसी साल इंटर्नशिप अपनी कंप्लीट की है. मैंने ACE Achievers लास्ट ईयर ज्वाइन किया था जब मेरी इंटर्नशिप बिगिन हुई थी, और तब से मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही. मुझे पता नहीं था कि मेरी 6 रैंक आएगी, बट व्हेन आई गॉट इट, मुझे तो पता नहीं था कि कितनी खुशी थी अंदर से. घर वाले सब घर को जब बताया, दीदी थी मेरे, मम्मी पापा तो अभी बाहर हैं, पर दीदी थे, दे वर ऑल एक्साइटेड एंड दे वर शाउटिंग. सो इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. सो मुझे बहुत अच्छा लगा उस टाइम, एंड मुझे ये भी लगता है कि अब टीचर्स को मैंने अपने प्राउड करवाया. सो आई फील गुड नाउ. Actually, Maheshwar, जब रिजल्ट आया था तो even we were feeling very very proud and very happy that another year ACE Achievers students have again bagged a top 10 seat, which is the thing we actually work for. जैसे ही रैंक पता चली थी तो हम खुद इतने खुश थे कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस कि हमें कैसा लग रहा था. दीज आर थिंग्स जो आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं. व्हेन यू गो इनटू दैट सिचुएशन, यू हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन एक्चुअली द इमोशन ऑफ दैट टाइम. सो महेश्वर, ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस. आपने सबको प्राउड किया है. अपने ESIC डेंटल कॉलेज के टीचर्स जो आप लोगों पे इतना मेहनत करते हैं, हम लोग जो हम इतना मेहनत करते हैं. ये बताओ कि फर्स्ट अटेम्प्टर इंटर्नशिप में आपने ये सब कैसे मैनेज किया? सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैंने पहली बार में अटैम्प्ट मेरा भले ही पहली बार था, लेकिन मैंने इसके लिए प्रिपेयर 5 साल से किया था. तो मेरी 5वां साल कह सकते हो आप तैयारी का. फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक मेरी अच्छी रैंक्स रही हैं. हम दोनों ही अपनी क्लास में अच्छे रैंकर्स थे, तो हमने अपनी जितनी बुक्स थी नॉर्मल उस टाइम जो पढ़ने के लिए टीचर्स कहते थे, हमने हो सका जितना अपने तरफ से पूरा एफर्ट डाला था फाइनल ईयर तक. तो आपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जैसे कि कैरेंजा होती है, स्टूडेंट होती है, उस तरह की बुक्स के ऊपर फोकस किया था? सर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कम्प्लीटली मैंने उनसे पढ़ा, लेकिन ऑफकोर्स रेफरेंस हम जरूर लेते हैं उनसे, क्योंकि हर चीज़ पढ़ना भी कई बार मुश्किल होता है. पूरी बुक बहुत एक्स्ट्रा भी दिया होता है उसमें, तो मुझे जो रेफरेंस लेना होता था डिफिकल्ट लगते थे, टॉपिक समझ नहीं आए नॉर्मल बुक से, उनसे मैं रेफरेंस लेता था. बट मैं और आगे जब मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन की तब फिर मैंने ACE ज्वाइन किया था. यहाँ पे अच्छा मुझे गाइडेंस मिला प्रॉपर कि मुझे कैसे आगे प्रिपेयर करना है, पेसअप करना है. मैंने प्रॉपर अपनी टेस्ट सीरीज़ को फॉलो किया. उसके बाद जितने भी टेस्ट होते थे मैं कोशिश करता था जितना टाइम से हो पाए टाइम से दे दूँ, और जो कोचिंग के नोट्स थे उसको भी बनाया. जितने बीच में लैग हुआ था थोड़ा सा अराउंड फेब के अराउंड, लेकिन जब ड्यू टू कोरोना मुझे थोड़ी सी उसमें हेल्प मिली अब मेरे लिए. तो कोरोना में जब आया तो खासकर अप्रैल का महीना, क्योंकि हमें मई से तो दोबारा ज्वाइन करना पड़ गया था, लेकिन अप्रैल के महीने में मैंने अपना पेसअप किया. मैंने अपने 2-3 सब्जेक्ट उसी टाइम कंप्लीट कर लिए थे, तो वहाँ पे मुझे बहुत हेल्प मिली. महेश्वर, तुम कहते कि यू यूज्ड टू फॉलो द एकेडमी
वेरी डेडिकेटेडली। तो कंसिस्टेंसी के ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ कि पूरे इंटर्नशिप में कंसिस्टेंसी का क्या रोल है जब आप ऐसे टॉप रैंक्स के लिए, आप इतने टफ एग्ज़ाम के लिए जाते हो? सर कंसिस्टेंसी मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। आप अपने दिन में कम से कम अगर हो सके 3 से 4 घंटे कोशिश करके निकालें, खासकर इंटर्नशिप में। मुश्किल होता है, मैं ये नहीं कहूँगा हर दिन निकलेंगे, लेकिन जिस दिन भी निकलें एटलीस्ट उतना निकालें। किस दिन ज़्यादा निकल गए, छुट्टी मिल गई, उस दिन ज़्यादा निकालें। तो जितना कर सके करें, और अपना सब्जेक्ट ज़्यादा लैग ना रखें, कोशिश करें कि 7 बाय 7 हो, क्योंकि पाइलअप होता रहता है। हम सोचते हैं कल कर लेंगे, लेकिन वो पाइलअप होता रहता है, उसका वो नहीं हो पाता बाद में बैकअप। तो इसलिए जितना हो सके साथ में करें। टेस्ट ज़रूर देना है, और टेस्ट को देने के बाद उसको रिव्यू भी करना है अपना कि मैंने कहाँ गलती की है। मेरे हिसाब से जो एज के टेस्ट होते हैं, इससे बढ़िया टेस्ट सीरीज़ कहीं भी नहीं होगी, क्योंकि मैंने और भी टेस्ट सीरीज़ देखी हैं, बट मुझे नहीं लगता इससे बेटर टेस्ट सीरीज़ है। एज में आपको हर हफ्ते 120 क्वेश्चन मिलते हैं, हर सब्जेक्ट के 240 क्वेश्चन आप करते हो, और फिर लास्ट में मॉक टेस्ट भी बहुत बढ़िया रहते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी लगी थी मुझे आपकी। मॉक टेस्ट की बात करें महेश्वर, तो मॉक टेस्ट सीरीज़ से आपको कैसे फ़ायदा हुआ एस अचीवर्स के साथ? क्या अच्छा लगा मॉक टेस्ट सीरीज़ में? सर सबसे पहले तो मॉक टेस्ट सीरीज़ का सबसे बढ़िया फ़ायदा ये था कि मॉक टेस्ट ऐसा नहीं था कि मतलब कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है, ये नहीं था सबसे बड़ी बात। मैंने एक तो ज्वाइन की थी, तो उसमें मैं देख रहा था कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है, आंख बंद करके क्वेश्चन दे रहे हैं, जो शायद मुझे लगता नहीं कि वो मेरे लिए ज़रूरी भी है एज अ BDS मेरे ख्याल से। तो वो नहीं था। आपके क्वेश्चन बड़े मतलब जो आते हैं नॉर्मल, जिस तरह का पैटर्न है, नॉर्मल पैटर्न जो है, या आपके जैसे पल्स से क्वेश्चन देते थे सर, थोड़े उससे मॉडिफाई करके देते थे। नॉर्मल नीट में भी ऐसा नहीं कि पल्स एकदम आते हैं, उसी को मॉडिफाई करके टीचर्स बनाते हैं कई बार। तो वैसे मॉडिफाइड क्वेश्चन आते थे, कुछ नए क्वेश्चन भी डालते थे, जिससे हमारा थोड़ा वो बढ़ते। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल जो पेपर का पैटर्न था बहुत ही सिमिलर था दोनों में, एम्स में भी और नीट में भी। मुझे दोनों में बहुत सिमिलर लगा। हाँ, और जो ऐप था आपका वो भी काफ़ी सेम, मतलब जैसे हम देते हैं तो हमें मतलब मेरे हाथ रेडी हो गए थे कि अपने आप कहाँ मूव करना है। मुझे अपने उसके लिए टाइम कंज्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब महेश्वर, मैं एक चीज़ पे वापस आता हूँ। तुम अपने कहते मैंने नोट्स बनाए ड्यूरिंग द इंटर्नशिप फ्रॉम द लेक्चर जो हम देते हैं। बहुत स्टूडेंट्स की ये क्वेरीज रहती हैं, क्या आप रेडीमेड नोट्स देते हैं? अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू प्रेफर? यू विल प्रेफर रेडीमेड नोट्स फ्रॉम एन अकेडमी, या आप अपने नोट्स बनाना चाहेंगे बेस्ड ऑन व्हाट अकेडमी इज टीचिंग यू? सर अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ तो ये है कि जैसे दूसरे के लिखे हुए नोट्स कई बार मुझे नहीं लगता मैं उतने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। पहली बार कई बार लोग शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं नोट्स में, मैं उसको पहले बार इंटरप्रेट ही नहीं कर पाऊँगा कि वो क्या लिखा था। मैं अपने शॉर्ट फॉर्म रख सकता हूँ, अपनी तरीके से बना सकता हूँ। मुझे अगर डायग्रामेटिक पसंद है मैं डायग्रामेटिक बना सकता हूँ, मुझे अगर स्कीमेटिक पसंद है स्कीमेटिक बना सकता हूँ। तो अलग तरीके के पूरे नोट्स बन सकते हैं। सो इसलिए अगर अपने नोट्स बनाना सब हमेशा बेटर रहता है। मैंने मेडिकल डेंटल तो मैं फिर भी थोड़ा उसमें वो कर जाता था कि कोई छूट गया अगर बनाया, लेकिन मैं मेडिकल के मैंने अपने सारे बनाए थे, क्योंकि मुझे अपना मेडिकल थोड़ा कमज़ोर लगता था। वही मैं ये नहीं कहूँगा आप लोग बनाओ, लेकिन मेरा मेडिकल कमज़ोर था, तो मैंने अपने मेडिकल के अपना प्रॉपर बनाए थे नोट्स। और उसके बाद फिर जब डेंटल का आया था तो मेरी पहले से स्ट्रॉन्ग थी, तो मैंने उसमें थोड़ा अपना टाइम रिड्यूस करके मेडिकल में ज़्यादा एफर्ट डाले थे। So after Maheshwar, now I'll move to Madhur. Madhur, as Maheshwar mentioned, कि both of you guys have been sharing the top ranks in the BDS level exams from the first to the final year. First of all, you people have been very mean, not allowing the others. On the serious note, I will ask you, how did you go about your preparation? Getting a 259 rank in the first attempt is a very, very good rank. How did you go about your preparation? So while starting my preparation, I just had one thing in my mind that I read somewhere, first attempt is the best attempt. That whatever my best I can give here, at least if not a short selection, it will boost up my confidence for my further preparation. I can at least have a level that yes, this was my level at that time and I can definitely go better. So that was my basic aim when I started. The first thing that I did was I identified where I was weak and what were my strong points. The main aim was to keep your strong points strong and make your weaker points up to an average level. So that's what I did throughout my preparation. My dental was more or less, it was a good part of mine. So I did my dental, and similarly, as Maheshwar said, my medical was also somewhat weaker. So for medical, I diligently followed the academy classes and I made all the notes for that. And I just did that. I didn't believe in like going to mote textbooks and going through each and every page, because being an intern, surely we didn't had enough time. We had to manage it accordingly. Exactly. That is my next question to you. That being an intern, time is a big problem.
Okay. How did you manage your time? How did you lay stress upon certain areas? Like, it is a personal thing. You might have some subjects on which you laid stress. But as a message to all the people out there, how should you divide your time to get the best out of you? Sir, what I felt was that to realize your weak points, you must need to assess yourself. So that's what Academy provided me. With regular tests, I could assess exactly the topic where I was weak. Like for medicine, most people have CVS as their weak points, but I realized that I know CVS very well. Whenever around 10 questions are coming, I could easily tackle around 7 or 8. So that was, I think that was my okay point. But then on the other hand, in the questions only I realized that no, I wasn't able to do respiratory questions well. So these things cannot come until and unless we are exposed to some questions. And even the guidance is very necessary. We can get a lot many books out there in the market, but if there is a right guidance, they can tell you what to read and what not to read. We have a whole ocean in front of us. The course is endless. Yes. So sir, I truly felt that in situations like these, the teachers like you and the academy teachers that taught us have played an important role. They told us where exactly we need to stop ourselves, what questions are exactly being asked. Because as an intern, we need to know where the ocean ends. Exactly. Actually, the ocean has no end. If you start going into the medical side, even into the dental side, I mean, there is no end to the research. So, focusing on the right areas, it is all the more important when you are an intern. At the second attempt level, you are expanding your horizon. But at the intern level, when the time is limited, you have to have focused, dedicated preparation into certain areas and hope that that is what comes in the exam. What Madhur has also highlighted, that she has worked all throughout the 4 years. It is not an overnight success with Madhur and Maheshwar. It is the dedicated effort for the last 5 years that they have put in. If you look at what Maheshwar said, he said, I took it as my 5th attempt, not as my first attempt. I think this is a breakthrough line which he has made. It is a really good line. अब महेश्वर मैं इस चीज़ पे आऊँगा जो मधुर ने भी हाईलाइट की थी. हम डेंटल लोगों का मेडिकल यूजुअली वीक रहता है. इस पेपर के अंदर बहुत मेडिकल आई, तो आपने अपने मेडिकल को कैसे पेश किया? सर सबसे पहले तो मैंने अपने मेडिकल के वीक पॉइंट पहचाने. मेरे मेडिकल में जो ज़्यादा वीक था वो था मेडिसिन, फार्मा और थोड़ा बहुत सर्जरी. तो मैंने क्या किया, जो पहले मेरे स्ट्रॉन्ग्स थे, जितने एनाटमी और ये बायोकेम और फिजियो, इनको मैं अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया जितना हो सकता था, कि इसमें से अगर आए तो मैं 12 आ रहे तो 12 में से मैं 10 सही कर सकता हूँ. उसके बाद जब इनका नंबर आया तो मैंने बोला कि इनको मैं पूरा नहीं पढ़ सकता, फार्मा बहुत लंबी है तो मैं कंप्लीट नहीं पढ़ सकता. तो मैंने इतना प्रिपेयर किया कि अगर मैं इसमें 12 क्वेश्चन आ रहा है तो मैं इसमें से 8 या 7 तो करके आऊँगा. एटलीस्ट जो बेसिक लेवल का बच्चा कर सकता है उतना कर लो, बाकी आई विल एक्सेल इन द एरियाज वेयर आई एम. मेडिकल के लिए मैंने आपकी बुक भी करी. आपकी बुक में जितना मेडिकल का पार्ट था मैंने वो कोशिश किया कंप्लीट करने का, और बाकी क्वेश्चन तो मैंने सारे मेमोराइज कर लिए थे अपने प्रीवियस ईयर के, कोई छोड़ा नहीं था, तो सारे मेमोराइज थे. पल्स में मैंने कोशिश की कि जितना हो सके 90% पल्स मैं कर सकता था सही जब मैं एंड में आया था. और मैं इसको भी रिकमेंड करता था कि हमेशा पल्स पहले एक बार कर ले, क्योंकि ये सब कर रहे हैं, जो चीज़ सब कर रहे हैं पहले उतना तो पहुंचाओ, उसके बाद देखेंगे आगे कहाँ जाना है. एग्जैक्टली, दिस इज ऑल्सो द राइट थीम दैट वी ऑल्सो एडवोकेट. पहले जो सब कर रहे हैं वो तो कर लो, उसके बाद आप आगे जाओगे. अदरवाइज आपके क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक में से, चाहे वो पल्स हो, चाहे वो गौरी शंकर हो, चाहे वो नीरज वृंदावन हो, इफ यू कांट आंसर द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन रिपीटेड प्रीवियसली, तो यू आर ऑलरेडी इन अ बिग प्रॉब्लम. सो दैट इज़ वन पार्ट. सो अब चरणप्रीत, मैं तुम पे वापस आता हूँ. मधुर और महेश्वर तो सारी रैंक्स आपस में शेयर कर लेते थे, ठीक है. तुम्हारा जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तुम थोड़ा फन लविंग, इंटेलिजेंट बट फन लविंग माने जाते थे, एंड एवरेज स्टूडेंट इन दी BDS ईयर्स. 300 रैंक, एंड आई थिंक यू कुड हैव गॉट अ हायर रैंक, बट बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू केम टू 300, ठीक है. ये बताओ कि व्हाट इज़ योर मैसेज टू द पीपल हु आर लाइक यू, दे आर नॉट टॉपर्स, बट आप इंटर्नशिप में ये सब कर पाए, तो व्हाट इज़ योर मैसेज टू ऑल द पीपल आउट देयर? तो सर, जब मैंने इंटर्नशिप में आया था तो मेरा एम यही था कि इंटर्नशिप को एंजॉय करना है, ये वाली लाइफ दोबारा नहीं आएगी. बट उसके बाद ड्यू टू कोरोना मेरे को एक टाइम मिल गया. मैंने कहा अब कोई खेलने के लिए तो है नहीं, अब किताबों को ही दोस्त बनाते हैं और चलते हैं, देखते हैं क्या होता है. तो मैं सर फोकस था कि मेरे को ऑफलाइन कोचिंग ही चाहिए, बट विद टाइम ये रियलाइज़ हुआ कि ऑनलाइन कोचिंग के भी बहुत एडवांटेज हैं. मतलब अगर तुम कोई लेक्चर मिस कर दो तो तुम दोबारा देख सकते हो, तो ये काफ़ी एडवांटेजेस था. और मेरे को मेरे जूनियर्स कहा करते थे, सर
आप एक बेंचमार्क सेट कर सकते हो कि एवरेज बच्चा भी कर सकता है अगर आप कर गए तो कुछ कुछ चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो एक मोटिवेशन की तरह बहुत बढ़कर आती है। तो उस दिन मैंने क्या करा था कि अपनी दीवार पर लिख दिया था, ऐसे नंबर बना दिए थे 300, 400, 500, 600। मैं सोचा था जब जब एक एक अचीव करूँगा उसको काटता रहूँगा। तो इन द एंड जब 600 कटा तो मतलब आखिरी पेपर था वो एकेडमी का, जब मेरा 600 कटा तो काफ़ी खुशी की बात थी। तो उसके बाद लगा था कि कोई होप है, कर सकते हैं। अब चरणप्रीत ये बताओ, तुमने कहा कि मैं ऑफलाइन पढ़ने वाला स्टूडेंट था, कोरोना के कारण यू शिफ्टेड टू द ऑनलाइन सिस्टम, तो अडेप्टेशन कैसी थी और एस अचीवर्स में आने के बाद तुम्हें क्या लगा कि हाँ ये ठीक जगह आए हो और फ़ायदा होगा? सर शुरुआत में तो काफ़ी मुश्किलें हुई मुझे कि मतलब आई स्ट्रेन होता है, मतलब इस चीज़ की मुझे आदत ही नहीं थी। मुझे लगता था एक कॉम्पिटिटिव माहौल सिर्फ वहाँ पर बन सकता है सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग में। बट जब ऑनलाइन कोचिंग में जब पेपर होते थे, वीकली टेस्ट होते थे, हर एक वीक में तुम्हारा एक सब्जेक्ट असाइंड होता है कि तुम्हारा ये एग्ज़ाम है, तुम्हें इसका देना है। तो अगर तुम एक प्रिजर्वेशन बहुत अच्छी चीज़ है, एक डिसिप्लिन अगर तुमने बना लिया तो तुम उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। इन द एंड आते आते मैंने अपनी सारी पार्टीज़ करनी छोड़ दी। मैंने कहा नहीं, अगर कर सकता हूँ तो जैसे मधुर ने बोला फर्स्ट अटैम्प्ट इज़ द बेस्ट अटैम्प्ट, तो उसी चीज़ को सोचा। इन दोनों ने बहुत मेरा साथ दिया तो इस चीज़ को मैं अचीव कर गया सर। एट द लास्ट आई हैव अचीव दिस फीट। बहुत अच्छा लगता है। आई विल कम बैक टू महेश्वर, एस अचीवर ज्वाइन करने से तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ? Whom all would you like to give your credit? सर एज अचीवर की सबसे अच्छी जो चीज़ थी वो मुझे टेस्ट सीरीज़ लगती थी, क्योंकि मुझे टेस्ट सीरीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई थी और उसमें मतलब मुझे बहुत ही जेन्युइन लगती थी। कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ही उटपटांग क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉर्मल जेन्युइन टेस्ट सीरीज़ लगती थी। उसके बाद लेक्चर सही थे, ज़्यादा लंबे नहीं थे, घंटों घंटों के नहीं थे, अपना थोड़े टाइम के थे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही बताते थे और ज़्यादा इधर उधर नहीं, अपना ट्रैक पे रहते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसमें अपना मेरा टाइम बहुत सेव हुआ उस चक्कर में। मुझे आने जाने की कोई टेंशन नहीं थी, तो वो भी टाइम अपना सेव होता था। इनको भागना पड़ता था अपने टाइम पे तो मुझे वो टाइम सेव होता था। तो ये सारे फ़ायदे रहे। I am coming back to you, Madhur. How did ACE Achievers help you in your preparation? You've already talked about so much. As an official question, how did ACE Achievers help you? So I think whatever I have achieved, it's been all because I have joined the academy. No one can do the preparation alone without any guidance or any mentor sitting for them. And I truly recommend that to my juniors also I'll pass on the message that of course it's usually thought that internship here first attempt you cannot clear, but it's not like that. Even last year when our senior cleared it, Ananya sir cleared it in the very first attempt. Before that Harsha ma'am cleared it. Then we also gained some confidence that yes, we can do it in the first attempt, and that's what kept us going. And it's because of the support of academy only that I managed to pass through it with the first attempt only. So my last question, whom all would you like to thank for your success? Yes, I would like to thank God, my parents, and of course my faculty at ESIC Dental College, that they have trained us so well in the 4 years that we are able to clear the exams in the first attempt only. They have made our basics very clear. And then sir and Akshika ma'am, that who have shaped us. We were just like rough molds. You have shaped and polished us into fine people that we are today. And of course I had a very great group of friends. Maheshwar and Charanpreet were there. I had some very good friends that always supported me. They always motivated me. Thank you, Madhur, for the kind words. Thank you, sir. These are the words which we work for. Maheshwar, thanksgiving by you. हाँ, सबसे पहले तो मैं गॉड को, उसके बाद पेरेंट्स हैं मेरे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। स्कूल कॉलेज में मेरे टीचर्स, स्पेशली प्रणव सर, उनके बिना तो ये जीत अधूरी है। एंड ऑफकोर्स सर आपको एंड अक्षिका मैम को, आपने और सही से गाइड किया, इधर उधर भटकने नहीं दिया। सो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरे अच्छे दोस्त थे। मुझे लगता है जो एक चीज़ हम लोग मिस करते हैं, जो कि हर बच्चा मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उसके साथ ही टाइम आता होगा, एक होता है सर नर्वस ब्रेकडाउन। मुझे नहीं पता, मेरा लास्ट के मंथ में 2-3 बार तो कम से कम नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। तो अब वो अच्छा था कि मेरे साथ चेरी और मधु तैयारी कर रहे थे, तो मैंने इन दोनों से अच्छे से मतलब बात करके, एक आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करके और एक दूसरे को चेयर करके हम लोग ने आगे बढ़ते रहे। हमेशा ये सोचते थे कि हम तीनों का ही होगा, और फाइनली जब हम तीनों का हुआ तो हमारी भी खुशी बहुत अलग ही थी। और 2 दोस्त मेरे और थे, क्योंकि मैं फ्लैट में रहता था अपना, मुझे बाहर पीजी लेना पड़ा था, तो वहाँ पे भी मेरे दोस्त थे 2, अजय और प्रशांत, उन्होंने बहुत हेल्प की थी, क्योंकि वो कभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करते थे। यही हंसते कि उन्होंने कभी डिस्टर्ब नहीं, हाँ भाई तू पढ़ ले, मैं अपना देख लूँगा। Charanpreet, whom all would you like to thank for your success? सर सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को थैंक करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत सहा है। जब भी वो कुछ बोलते थे मैं उनको चुप करा देता, अरे मेरे को पढ़ लेने दो, मेरे को पढ़ लेने दो।
मैं मतलब एक मेरी नीस है, मेरे ब्रदर और मेरी भाभी, ये सब पूरे घर में मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है। उसके बाद मेरे टीचर्स, आप, अक्षिका मैम, डॉक्टर प्रणव सर, मतलब वो तो हर एक पॉइंट पर मोटिवेट ही करते रहते कि भाई तू कर लेगा, तू कर लेगा। और अक्षिका मैम का तो ऐसा रहता था कि हर तीसरे चौथे दिन तो मैं मैम को फ़ोन मिलाता था, मैम अब क्या करूँ मैं, अब क्या करना है, अगला प्लान बताओ। तो मैम का काफ़ी सपोर्ट रहता था। मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे, ईशना हो गए, प्रशांत हो गए, रिचा हो गए, इन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करा है। तो थ्रू थिक एंड थिन ये जो सारा टाइम आता है बहुत नर्वस ब्रेकडाउन होता है, मतलब मेरे जैसे के लिए तो ये ऐसा था कि पोथे भर चुके हैं मेरे लिए, इनको पार कैसे करना है। तो काफ़ी हेल्प करते हैं ये दोनों ने, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। और एक चीज़ है कि ग्रुप स्टडी बहुत हेल्प करेगी। अगर एक लिटरेचर में सर कहते हैं कि इफ़ यू वांट गो फास्ट यू गो अलोन, इफ़ यू वांट गो फार यू गो विद योर फ्रेंड्स। सो वो बहुत अच्छी चीज़ थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मेरे जितना भी ESI का फैकल्टी है, आई वांट टू थैंक देम। और जो भी मैं आज अगर इधर बैठा हूँ तो आप सभी की वजह से, थैंक यू। So very well said by Charanpreet. If you want to go fast, you go alone. If you want to go far, you go with the group. So that is why this is also the theme Ace Achievers imbibes. We want to go far and we want to take everybody as far as we can, as top as we can, until we achieve the pinnacle, until we achieve all the top ranks. So with this I wind up the interview. Thank you all guys for choosing Ace Achievers. Thank you all for coming here in these times, special times. So many people are scared, but taking out time, believing in us, coming here. I'm really thankful for choosing us. I'm really thankful that you people are here sharing the stage with me. Actually, you are the stars. So thank you all for watching this video. In times to come, Ace Achievers will come with more videos of toppers, encouraging students to go further ahead in time. Thank you all and Jai Hind.